Hello, my dear student. Welcome to the subject name is Environmental Science. Today we are going to discuss about solid waste management, its causes, effect, and control measure of urban and industrial waste. So this is the references part. Today PPT has been made from these sources. So let's begin with the topic that is solid waste management. Higher standard of living, rapid population growth, and urbanization in the developing countries have resulted in the generation of the enormous quantity of solid waste. जैसे जैसे पॉपुलेशन इंक्रीज कर रही है उतना ज़्यादा वेस्टेज उतना ज़्यादा सॉलिड वेस्ट मटेरियल waste create हो रहा है and if the waste generation continue in this way it would result in irreparable damage to the environment. ये वेस्टेज जिस तरह से कंटिन्यू इंक्रीज करता रहेगा तो इट वुड क्रिएट अ डैमेज टू द एनवायरनमेंट एंड दिस वेस्ट इज नॉर्मली डिस्पोज्ड विदाउट प्रॉपर ट्रीटमेंट इन ओपन डंप resulting in widespread environmental pollution and degradation. So if the waste we are talking about, this waste if disposed in open way result in the environmental pollution. तो solid waste एक बेसिकली बहुत इम्पॉर्टेंट काइंड ऑफ पोल्यूशन है जो कि हम ह्यूमन बीइंग की पॉपुलेशन के साथ साथ इंक्रीज करता है, अर्बनाइजेशन के साथ इंक्रीज करता है. तो इन एब्सेंस ऑफ सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट दिस काइंड ऑफ पिक्चर वी कैन सी. अगर सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट नहीं है तो इस तरह की पिक्चर्स हमें मिलती है एंड solid waste management is basically causes a major risk to the public health and environment. Therefore the solid waste management become very important to order to minimize the adverse effect of solid waste. solid waste जितना भी होता है, solid means wastage अगर solid form में है तो वो harmful होता है population के लिए, इन्वायरमेंट के लिए. और ऐसे वेस्टेज को कंट्रोल करना, मेजर करना, उसको पर्टिकुलरली मैनेज तरीके से मैनेज करना ही solid waste management है. तो before starting the solid waste management, how we can manage the solid waste, firstly we have to understand the type of solid waste. कितने type of solid waste होते हैं, solid waste के क्या causes होते हैं. solid waste basically waste which are neither be liquid nor gaseous can be classified into the सॉलिड वेस्ट होता है. ना ही वो लिक्विड फॉर्म में होता है ना ही वो गैस की फॉर्म में होता है, वो सॉलिड फॉर्म में होता है. लाइक अर्बन एंड म्युनिसिपल वेस्ट, इंडस्ट्रियल वेस्ट, एग्रीकल्चर वेस्ट एंड मेडिकल वेस्ट एंड माइनिंग वेस्ट. And above all, that is a hazardous waste. The problem of solid waste generation is increasing and rapidly with the urbanization and industrial development. And developed countries like USA, Canada, Japan, England, and Germany and France are the main solid waste producer है जो कि maximum solid waste produce करते हैं. और ये hazardous waste basically harmful kind of waste होता है जो कि human being के लिए बहुत harmful होता है. तो सोर्सेस क्या है अर्बन वेस्ट के. जब हम अर्बन मीन्स अर्बनाइजेशन मीन्स जो शहरी लोग हैं उनके द्वारा जो भी वेस्ट होता है दैट इज अर्बन वेस्ट. और ये अर्बन वेस्ट बेसिकली कई तरह के सोर्सेज होते हैं वेयर वी गेट द अर्बन वेस्ट. दैट डोमेस्टिक वेस्ट. डोमेस्टिक वेस्ट में बेसिकली वैरायटी ऑफ मटेरियल आ जाता है विच इज बेसिकली थ्रू आउट फ्रॉम द होम्स. जो घरों से जो भी कूड़ा आता है लाइक फूड वेस्ट, खाना जो बच जाता है, क्लोथ वेस्ट, पेपर, ग्लास बोतल, पॉलीथीन बैग्स, वेस्ट मेटल्स एंड प्लास्टिक कंटेनर, स्क्रैप पेंट एंड कमर्शियल वेस्ट जो होता है बेसिकली वेस्ट इज कमिंग आउट फ्रॉम द शॉप, मार्केट, होटल्स, ऑफिस, इंस्टीट्यूशन से आता है. वेस्ट पेपर, पैकेजिंग मटेरियल, केन्स, बोटल्स, पॉलीथीन बैग्स एंड कंस्ट्रक्शन वेस्टेज क्या होता है बेसिकली इट इंक्लूड द वेस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन मटेरियल एंड वुड्स, कंक्रीट एंड डेबरिस. तो बेसिकली अदर डोमेस्टिक वेस्ट. हॉर्टिकल्चर वेस्ट क्या होता है वेस्ट फ्रॉम द वेजिटेबल पार्ट लाइक रेजिड्यू रिमेनिंग ऑफ द स्लॉटर एनिमल्स and respectively. Biomedical waste is also come under the urban waste, that is a or waste of organic material. Anatomical and non-chemical waste basically infectious wastage and glass bottle, plastic, metal and syringe. ये basically सबके सब वो वेस्टेज जो बेसिकली अर्बन वेस्टेज कहलाते हैं. एंड टॉकिंग अबाउट द क्लासिफिकेशन, कितने टाइप की हम हाउ वी कैन क्लासीफाई व्हाट टाइप ऑफ अर्बन वेस्टेज. अर्बन वेस्टेज बेसिकली आर ऑफ टू टाइप, बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल. बायोडिग्रेडेबल वो वेस्टेज होता है जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म या छोटे छोटे इंसेक्ट के थ्रू डिग्रेड हो जाता है, दैट इज अ बायोडिग्रेडेबल. लाइक फूड, वेजिटेबल्स एंड टी लीव्स एंड ड्राई लीव को इजीली बायोडिग्रेडेबल कर सकते हैं, मीन्स एक डिग्रेड कर लेते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसे
डिग्रेड कर देते हैं। एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल बेसिकली आर द सॉलिड वेस्ट मटेरियल दैट कैन नॉट बी डिग्रेड बाय द माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जिस जिस भी वेस्टेज को डिग्रेड नहीं कर पाते, मीन्स कम नहीं कर पाते या उसको अच्छे से कट डाउन नहीं कर पाते हैं, ऐसे वेस्टेज को नॉन बायोडिग्रेडेबल, जिसको हम इजिली डिग्रेड नहीं कर पाते, ऐसे वेस्टेज को नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्टेज बोलते हैं। लाइक पॉलीथीन बैग, पॉलीथीन बैग को आप इजीली आप डिग्रेड नहीं कर सकते हो। स्क्रैप मटेरियल एंड प्लास्टिक बोटल्स एंड ग्लास बोटल्स को हम डिग्रेड नहीं, दैट इज बेसिकली नॉन बायोडिग्रेडेबल। तो सोर्सेज क्या है इंडस्ट्रियल वेस्टेज का? न्यूक्लियर प्लांट हो गया, केमिकल इंडस्ट्रीज हो गया, थर्मल प्लांट हो गया, बेसिकली आर द सोर्सेज ऑफ द इंडस्ट्री। एंड दीज कैन इंडस्ट्रियल वेस्टेज आर वेरी हार्मफुल काइंड ऑफ वेस्टेज क्रिएट करता है। तो हार्मफुल इफेक्ट क्या होता है सॉलिड वेस्ट का? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है मैनेजमेंट को पढ़ने के लिए। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट को पढ़ने से पहले यू मस्ट अवेयर अबाउट द व्हाट इज द हार्मफुल इफेक्ट ऑफ द सॉलिड वेस्ट। तो सॉलिड वेस्ट का सबसे हार्मफुल इफेक्ट क्या होता है? सबसे हार्मफुल इफेक्ट क्या होता है इसकी? जब भी सॉलिड वेस्ट होता है, जब आप अपने रोड या सराउंडिंग में देखते हो, जो भी डिस्पोज किया हुआ कूड़ा होता है, उससे बहुत फाउल स्मेल आती है, बहुत बदबू आती है। ये कई तरह के डिजीज क्रिएट करता है, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है ड्यू टू द डिकम्पोजिशन ऑफ बायोलॉजिकल मैटर। और साथ ही साथ ये कई तरह के डिजीज क्रिएट करता है। टॉक्सिक मेटल्स जो होते हैं लाइक मर्क्यूरी, लेड आर रिलीज इनटू द इन्वायरमेंट ड्यू टू द इनअप्रोप्रिएट डिस्पोजल ऑफ द इंडस्ट्रियल सॉलिड वेस्ट। तो ये सॉलिड वेस्ट जब ओपन में होता है तो इससे बहुत तरह की डिजीज क्रिएट होती है। मर्करी एंड लेड जो होता है इन्वायरमेंट में क्रिएट हो जाता है। एंड हैजार्डियस जो सॉलिड वेस्ट होता है बेसिकली हार्मफुल सॉलिड वेस्ट होते हैं जो कि इंडस्ट्रीज के द्वारा क्रिएट किए जाते हैं। ऑल्सो कॉजेज अ सॉइल पोल्यूशन एंड अफेक्ट द प्रोडक्टिविटी ऑफ द सॉइल। एंड these kind of solid waste also contaminate the ground water। जो जमीन का अंदर का पानी होता है उसको भी टॉक्सिक बना देता है सॉलिड वेस्ट। एंड बर्निंग ऑफ द इंडस्ट्रियल एंड डोमेस्टिक जितने भी रेडियोएक्टिव मटेरियल, बैटरीज होती है, जितने भी केमिकल्स होते हैं, डाइऑक्सिन, पॉलीक्लोरिनेटेड बायोफिल, वाटर कंटेंटेड ड्यू टू द इम्प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ द वाटर डिजीज। तो यहाँ पर क्या होता है मोस्टली जो इंडस्ट्रियल एंड डोमेस्टिक वेस्टेज होता है उसके कारण क्या होता है वाटर पॉल्यूटेड हो जाता है। एंड और वाटर जब पॉल्यूटेड हो जाता है तो वाटर में डायरिया एंड डिसेंट्री एंड टाइफाइड एंड क्लोरिया एंड प्लेग काइंड ऑफ डिजीज क्रिएट करता है। तो सॉलिड वेस्ट जो मॉडिफाई द फिजियोकेमिकल एंड बायोलॉजिकल प्रॉपर्टी ऑफ प्लांट एंड सॉइल। तो ये सॉलिड वेस्ट क्या करता है बेसिकली प्लांट और सॉइल की बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज को चेंज कर देता है, डिग्रेड कर देता है, मींस कम कर देता है। ग्राउंड वाटर जो होता है कंटेमिनेटेड हो जाता है, खराब हो जाता है। और सॉलिड वेस्ट एक सबसे बड़ा हार्मफुल क्या होता है, इट एनहांस द एयर पोल्यूशन एंड वाटर पोल्यूशन, इससे और इंक्रीज हो जाते हैं। एंड द लास्ट दैट इज इंसेक्ट एंड इन्फेक्शियस ऑर्गेनिज्म आर प्रोड्यूस। इससे बहुत सारे इंसेक्ट एंड इन्फेक्शियस हार्मफुल बैक्टीरिया क्रिएट होते हैं सॉलिड वेस्ट से। Now talking about the how we can control these kind of solid waste through up solid waste management. तो solid waste management basically involves waste collection, transportation, segregation of waste and disposal technique. तो solid waste management एक ऐसा process है जिसमें हम waste को collect करते हैं डस्टबिन से, उसका ट्रांसपोर्टेशन करते हैं, उसका सेग्रीगेशन करते हैं हैजार्डियस प्लास्टिक एंड ग्लास, ग्रीन, अलग अलग तरह के वेस्टेज को ऑन द बेसिस ऑफ देयर प्रॉपर्टी wastage are segregated, and then finally management start like disposal of technique used. Solid waste management basically having a important step like involved in the solid management step. बहुत important steps solid waste management होते हैं। तो फर्स्ट स्टेप जो होता है बस सबसे 3 स्टेप्स जो है रिड्यूस रीयूज एंड रिसाइकल ऑफ रॉ मटेरियल बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसको पढ़ने के लिए आपको ये देखना पड़ेगा बेसिकली 5M है जो मैंने यहाँ मेंशन किए, रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल, रिकवरी एंड डिस्पोजल। तो रिड्यूस का मतलब होता है जनरेटिंग लेस वेस्ट इन एवरी वेस्ट बास्केट। तो ये 5R टेक्नोलॉजी के थ्रू आप सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बेस्ट वे से क्रिएट कर सकते हैं, जिसको मैंने यहाँ डायग्राम के थ्रू एक्सप्लेन किया था, 5R ऑफ द वेस्ट मैनेजमेंट टेक्निक। और ये बहुत ही as a citizen you must be aware about these kind of technique like reduce, reuse, recycle, recover and residual management। reduce का मतलब क्या होता है? whenever ये वी सॉलिड में बेसिकली क्या है, आपको बेसिकली जितने भी आप यूज, reduce means that we should use less,
For example, save electricity by switching off unnecessary light or fan, and save water by repairing leak tap, and do not waste food. तो this is basically reduce strategy. Now reuse strategy क्या होती है? Reuse means using the same thing again and again. तो हम क्या कर सकते हैं इन्वायरमेंट में, हम बार बार जैसे प्लास्टिक की बोतल एंड जो भी ग्लास की बोटल्स होती है उनको वी कैन यूज द सेम थिंग अगेन एंड अगेन, सो वी कैन डू second R, that is reuse. Like instead of throwing paper, we can reverse it and use it again. Plastic bottle can be used again and again to store item. We can take polythene bag with us while going to market and ask shopkeeper to put goods in that polythene bag instead of using a new one. तो this is a reuse technique. अगर आप रिसाइकल यूज करना चाहते हैं तो आपको ये टेक्निक में बेसिकली सबसे पहले स्ट्रेटेजी रिड्यूस होती है, देन रीयूज, देन रिसाइकल. अब कोई मटेरियल रिड्यूस नहीं हो सकता, रीयूज नहीं हो सकता, देन हम उसको रिसाइकिल करेंगे. रिसाइकिल मीन्स दैट वी शुड कलेक्ट आइटम लाइक प्लास्टिक, पेपर, ब्लैक metals and use this material to make a new product instead of using a new plastic and new metals. तो यहाँ पर न्यू प्रोडक्ट क्रिएट करना फ्रॉम द वेस्ट मटेरियल, ये रिसाइकिल होता है. तो वेस्ट मटेरियल से न्यू प्रोडक्ट करना, दैट इज अ रिसाइकलिंग. Like we should use the kind of plastics which we can recycle to make a new product like thermoplastic. अब आता है that is a repurpose. Repurpose means recover. It means converting the waste into the resources. Waste plastic bottle can be used to make a boat. तो यहाँ पर अलग तरह से आपने देखा होगा प्लास्टिक की बोतल से प्लांट ग्रो किए जाते हैं. प्लास्टिक की बोटल्स को डिफरेंट एज अ प्लांट स्टैंड यूज किया जाता है. प्लास्टिक से हम डिफरेंट तो बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट वी कैन मेक फॉर द दिस काइंड ऑफ वेस्टेज. तो जब भी हम इन्वायरमेंट में इस आर अलग अलग आर, रीयूज, रिड्यूस, रिसाइकिल, रिव्यूज का यूज करते हैं, दैट वी आर यूजिंग अ सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट टेक्निक. एंड लास्ट में आता है रिफ्यूज. रिफ्यूज का मतलब क्या होता है? रिफ्यूज मीन्स वी कैन रिफ्यूज टू यूज अ प्रोडक्ट विच आर हार्मफुल टू द इन्वायरमेंट. तो आपको लास्ट स्टेप ये कि आप कोशिश करें कि ऐसा कोई प्रोडक्ट यूज ना करें जो हार्मफुल है. नो मोर प्लास्टिक बैग, आप प्लास्टिक बैग का यूज ना करें. एंड वी शुड से नो टू सिंगल यूज ऑफ अ प्लास्टिक बैग्स एंड no use using a product which is harmful to the environment. तो these are the basically 5R जिसको मैंने explain किया है. This is a basically solid waste management technique. 5R है. इसके अलावा another way of discarding waste. अब इसके अलावा हमारे पास कुछ और टेक्निक्स बनती है जिसके थ्रू हम वेस्ट को डिस्कार्ड कर सकते हैं. तो वेस्ट को डिस्कार्ड करने का जो लास्ट टेक्निक है वी हैव, दैट इज लैंडफिल, इंसिनरेशन एंड कंपोजिटिंग. लैंडफिल का मतलब क्या होता है कि आप जितना भी वेस्टेज है इन अ sanitary landfill waste in a dump in a many layer of 80 cm thick refuse which is covered with solid of 20 cm thickness. तो बेसिकली आप किसी एरिया में जितना भी वेस्ट मटेरियल होता है उसे लैंडफिल कर देते हैं, उस एरिया को वेस्टेज से कवर कर देते हैं. मगर वो एरिया ऐसा होना चाहिए जो शुड बी अवे फ्रॉम द पॉपुलेटेड एरिया. तो जहाँ पर लोग रह रहे हैं उस एरिया में नहीं होना चाहिए, क्योंकि इस तरह का लैंडफिल, जो वेस्टेज का लैंडफिल अगर होगा, वहाँ वेस्टेज डंप कर दिया जाएगा तो वो बीमारी क्रिएट करेगा. तो ऐसे एरिया को थोड़ा दूर रखा जाता है पॉल्यूशन पॉपुलेशन से. तो पॉपुलेशन मीन्स जहाँ लोग रह रहे हैं उस एरिया से दूर रखना. तो इस तरह के एरिया क्रिएट किए जाते हैं और वहाँ पर लैंडफिल किया जाता है और इस तरह से लैंडफिल करके उन्हें छोड़ दिया जाता है. एंड दिस डिकम्पोजिशन जनरेट टॉक्सिक गैसेस. इस डिकम्पोजिशन से क्या होता है? टॉक्सिक गैसेस क्रिएट होती है. तो सॉलिड, तो ये वन ऑफ द वे एंड बेस्ट वे और एंड चीपेस्ट वेस्ट तरीका होता है जिससे सॉलिड वेस्ट में, दैट इज अ लैंडफिल. मीन्स किसी पर्टिकुलर एरिया को फिल कर देना वेस्टेज मटेरियल से और उसे छोड़ देना ताकि दे ऑटोमेटिकली डिग्रेड इनटू द देयर नॉर्मल फॉर्म. एंड और सबसे इम्पॉर्टेंट थिंग यहाँ पर हैजार्डियस सब्सटेंसेस जो होते हैं वो बहुत ही हार्मफुल होते हैं और हैजार्डियस सब्सटेंस बेसिकली टॉक्सिक होते हैं. दी बेसिकली हैजार्डियस सब्सटेंसेस और वेस्टेज क्या होते हैं? लाइक लेड, जिंक, मरकरी, रेडियोएक्टिव मटेरियल, पैथोलिन लैब एंड टॉक्सिक केमिकल्स. हॉस्पिटल का जो वेस्टेज है ये हैजार्डियस काइंड्स ऑफ वेस्टेज होते हैं जिनका बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है. हमें इसे लैंडफिल नहीं कर सकते क्योंकि ऐसा वेस्टेज अगर लैंडफिल करेंगे तो ये बायोडिग्रेड नहीं हो पाते. So that's why we have to do a incineration process. Incineration means क्या होता है? It is a hygienic way of disposing solid waste which is suitable if the
if the waste is more hazardous material and the organic content. अगर जो वेस्टेज है वो बहुत hazardous है, मीन्स बहुत खतरनाक है, तो इसको जला दिया जाता है। और इसको कंबशन के थ्रू क्या होता है, प्लास्टिक मटेरियल, जितनी प्लास्टिक होते हैं, रबिश एंड गार्बेज एंड डेड ऑर्गेनिज्म को डिकम्पोज किया जाता है एंड बर्निंग इन द इंसिनेटर। तो इस तरह से क्या होता है, इंसिनेशन प्रोसेस के थ्रू हम हीट प्रोड्यूस करते हैं, और ये वन ऑफ द मेथड है जिससे कि हम इलेक्ट्रिसिटी भी जनरेट कर सकते हैं थ्रू अ टर्बाइन। तो इन इंसिनेशन प्रोसेस से वेस्ट मटेरियल से को जला के एनर्जी प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो ये इसका एक फायदा है कि हम वेस्ट मटेरियल का यूज कर सकते हैं टू क्रिएशन ऑफ द एनर्जी। नाउ लास्ट दैट इज अ कंपोजिटिंग। इट इज अ पॉपुलर मेथड ऑफ कंपोजिंग, जिसको बोलते हैं खाद बनाना। आपको पता ही होगा कि हम क्या करते हैं, जितना भी वेस्ट मटेरियल होता है जो बायोडिग्रेडेबल होता है, उसे पर्टिकुलर एक एरिया में मिट्टी में डाल दिया जाता है, एंड ऑर्गेनिक मटेरियल जितने भी गोबर एंड ऑल काइंड ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसमें डाल दिए जाते हैं। और वेस्टेज नीड टू बी सेपरेट फ्रॉम द बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल। तो जो बायोडिग्रेडेबल वेस्टेज है उसे डंप कर दिया जाता है इनटू द अर्थ, इनटू द डंप इनटू द डंप इनटू द अर्थ, एंड देन मीथेन गैस रिलीज ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ कंपोजिटिंग। इसको कंपोजिटिंग कहा जाता है। एंड कंपोज फॉर्म होता है, एंड कंपोज फॉर्म को हम एज अ मैन्योर और एज अ फर्टिलाइजर भी यूज कर सकते हैं इन एग्रीकल्चर। और इससे एक मीथेन गैस क्रिएट होती है दैट यूज एज अ, इसको हम बायोगैस प्लांट में भी यूज कर सकते हैं, एक बायोगैस प्लांट क्रिएट कर सकते हैं। मोस्टली जो पुणे, हैदराबाद एंड दिल्ली एंड चेन्नई में बायोगैस प्लांट ऑपरेशन चल रहा है, मोस्टली इन अ कंपोजिट प्लांट से। तो बायोगैस प्लांट वर्क एज अ एलपीजी, जो एक गैस की तरह क्रिएट करता है। और कंपोजिटिंग का सबसे बड़ा बेनिफिट क्या होता है, वेस्ट इज कन्वर्टेड इनटू यूजफुल मैन्योर विच इज एनहांस द प्रोडक्टिविटी ऑफ सॉइल। तो खाद क्रिएट होती है और इससे बायोडिग्रेडेबल होता है, और मैन्योर और इजिली sold easily and thereby reducing the cost of waste disposal. तो ये basically are the method we can use to control the solid waste. So this is for today now. Thank you, my dear student.